جی سر بسمillahirrahmanirrahim ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں جو پچھلی 5-6 مہینے کی یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں یا ہماری جیپ ریلی تھی یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں ڈی آئی خان کے میڈیا نے جس طریقے سے بھرپور شرکت کی، بھرپور اس کو کوریج دی۔ الحمدللہ سارے پاکستان سے ہمیں جو لوگوں نے بتایا، دوستوں نے بتایا، کافی آپ لوگوں کا کام لوگوں نے پسند کیا۔ اس پہ میں آپ تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں اور یہاں جو نہیں موجود، باقی جو ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں یا ہمارے چینلز ہیں یا وہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کا آپ لوگوں کے تھرو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میں ہوں اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ میرا آپ تمام لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ارسپیکٹیو کہ کون میرے خلاف لکھتا ہے یا کون میرے ساتھ لکھتا ہے، وہ ہماری پرسنل بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں نے میڈیا کو کبھی بھی میں نے ان کو یہ اس چیز پہ نہ احساس خود کیا، نہ کسی اور کو احساس کرنے دیا، اور نہ ان کو احساس اور نہ ہی کبھی آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی اس طرح کا کوئی پرائرٹی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگ ڈی آئی خان کا اثاثہ ہیں، اور میں آپ تمام لوگوں کو اس اثاثے کو انشاءاللہ میں آپ کی قدر بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جتنا میرے سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تھا، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اچھا، آنے والے میلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک طرف سیاسی گرما گرمی ہے، دوسری طرف میلہ سجنے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میلہ تو جی اس طرح ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ڈی آئی خان کا ایک ایونٹ تھا جو کہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا تھا، اور یہ پھر کچھ گورنمنٹس کی غیر آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ، اور ان کی کوئی اتنا ان لوگوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیے، اور یہ خراب ہوتا گیا، اور پھر دہشت گردیاں اور یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئی تو ڈی آئی خان کے اندر ان چیزوں نے بالکل ہی ایسی ساری چیزیں جو ہے نا ہماری سپورٹس، کلچر، ہیریٹیج، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں ڈسٹرب ہوئیں۔ لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد 2013 کے بعد سے آپ لوگوں کے ساتھ مدد سے انشاءاللہ ڈی آئی خان کے لوگوں نے جو قربانیاں دیں ان لوگوں کی مدد سے، ہماری سیکیورٹی فورسز، پولیس، آرمی کی مدد سے ہم لوگوں نے دوبارہ سب نے مل کے اپنے ڈی آئی خان کے شہر کو دوبارہ ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال، ایک پرامن راستے پر لگایا، اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد ہم سب کی محنتوں سے یہ ادھر ہم پہنچے ہیں۔ تو یہ ایونٹ آپ جانتے ہیں کہ 3 سال لگا، اور 3 سال میں الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا کور کر کے اتنا بنا کے بھیجا، اور اتنے مہمانوں کی عزت افزائی کی، مہمان نوازی کی کہ یہ ایونٹ پاکستان کا بیسٹ ایونٹ ڈکلیئر ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر 2 سال کرونا کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو نہیں ہو پایا۔ یہ ہماری جیپ ریلی پچھلے سال ہو پائی، اس سال دوبارہ جیپ ریلی ہوئی جو ہمارا فیز 1 تھا ڈیرہ جات کا، جو کہ بہت سکسیسفل ہوئی، پیچھے سے زیادہ شاندار ہوئی، اور الحمدللہ اس کو بہت زیادہ کورنگ ملی۔ تو یہ وہی میلہ انشاءاللہ جس طرح ہمارا 23 مارچ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ پاکستان ڈے کے ساتھ اپنے میلے کو رکھا ہے، اس میلے کا اب فیز 2 ہے جس کے اندر ہمارے پاس نیزہ بازی، گھوڑا ڈانس، جس میں ہمارے پاس بل کاٹ ریس، ڈنکی کاٹ ریس، ڈاگ ریس، ریسلنگ، کبڈی، دودا، رسہ کشی، سٹون لفٹنگ، اینیمل شو، پیٹ شو، کار شو، موٹر سائیکل شو، بینڈ شو، پی ٹی شوز، یہ سب کے سب ایونٹس تقریباً جو ہے وہ اس میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے کچھ ایونٹس ایسے ہیں جو ہم نے پوسٹ پون کر کے آگے کر دیے ہیں، جو انشاءاللہ 6-7 ایونٹ ہمارے ادھر لوکلی ہمارے سٹی کے اندر ہوں گے، جن میں ہماری جمناسٹک، یہ ہماری باڈی بلڈنگ ایٹسیٹرا ہے، یہ والی سپورٹس ہیں، ہماری آرٹ ایگزیبیشن ہے، ہماری نعت خوانی، قرات کمپٹیشن اور ڈیبیٹس کمپٹیشنز ہیں، اور یہ چیس کمپٹیشن، تو یہ سارے کمپٹیشن ہم نے فیس، اور پوئٹری مشاعرہ ڈی آئی خان کا جو بہت ہمارا اچھا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم نے فیز 2 میں کیا ہے، فیز 3 میں ان کو رکھا ہے۔ اور ایک ہماری ریس ہے جو کہ 27 تاریخ کو ہے، شاید اس کی ڈیٹ ہم آگے پیچھے کریں، جو کہ دریا خان میں پاکستان لیول کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ 25-30 ہزار بندوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ایونٹ کو ہم نے اتنا بڑا بنا دیا، اور میں اس چیز پہ آپ لوگوں کو ایک اور بھی چیز پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ڈی آئی خان کے اس وقت کے کم بجٹ میں اور مشکل حالات میں ہم نے اس میلے کو کروایا، اس کو ایک مقام پہ پہنچایا۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت اور ہماری محنت سے یہ ہوا ہے کہ اب یہ میلہ پورا کا پورا ہمارا جو ہے یہ کے پی کے گورنمنٹ اور پشاور سے یہ اسپانسر ہوتا ہے اور فائنانس ہوتا ہے، اور اس میں ڈی آئی خان کے جو ہمارا جو بجٹ ہے سپورٹس کا یا اس کا، وہ اس میں بہت کم استعمال ہوگا اگر ہوگا بھی صحیح، اور وہ باقی ہمارے سارے ڈی آئی خان کے ایونٹس پہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ بھائیوں نے جس طرح پہلے میرے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے اس میلے میں اور آگے، تو انشاءاللہ اس میلے کو دوبارہ آپ لوگ اچھی طریقے سے کور کریں گے، اور پورے ڈی آئی خان کا ایک بہت اچھا اور پازیٹیو ایک امیج انشاءاللہ پورے پاکستان کو دیں گے۔ تھوڑا سا ٹی ایم اے کے اوپر ذرا بیک گراؤنڈ کی طرف جا کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ٹی ایم اے کو ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت پہلے بھی میں اپنے 4 سال کے ٹینیور میں نے 21 کروڑ روپیہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے کاٹ کے تنخواہ اور پینشنوں میں دیا، کیونکہ ہمارے پاس پیچھے ہمارا بہت ہی ایک بڑا ریکارڈ تھا، اور الحمدللہ پچھلے سال میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کی قیادت میں اور فیصل امین خان کی قیادت میں ہم نے پچھلے سال ٹی ایم اے کو 0 پہ ہم لے آئے۔
मुकम्मल करोड़ों रुपए की पेंशन्स थी लोगों की जो रहती थी, और वो लोग रिटायर हो गए थे, कभी उनको लाख और कभी 2 लाख और इस तरह करके मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तनख्वाह और पेंशन दोनों मुकम्मल तौर पे ज़ीरो कर दी थी। इस वक्त 2 महीने की उनकी सैलरी का इशू बना हुआ है, 6 महीने की नहीं है। लेकिन ये आप जानते हैं कि जब इस तरह का गैप आता है और जब भी बल्दियात के इलेक्शन आते हैं तो इस डिपार्टमेंट के कुछ अपने भी इस तरह के आदात हैं कि ये हमेशा जब भी नया डिपार्टमेंट इलेक्टेड मेंबर्स इसमें आके बैठते हैं तो उनको ये चीज़ विरासत में मिलती है, 2-4 महीने की तनख्वाह और पेंशन वो डाल के देते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। उनका बजट भी हो चुका है, उनका सारा कुछ हो चुका है। हमारे जो मिनिस्टर हैं लोकल बॉडीज़ के, वो लोग इस वक्त कोई ऑफिशियल ट्रिप पे गए हुए हैं टर्की, इंशाल्लाह वो आज पहुँच रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मेले से पहले पहले इन लोगों की जो सैलरी वाला इशू है उसका भी वो चेक इन का आ जाएगा। और मैं इंशाल्लाह जिस तरह पहले मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था इस सीट पे बैठते हुए कि इस महकमे के रिलेटेड इश्यूज़ को हम इंशाल्लाह एक एक करके हल करेंगे, तो इंशाल्लाह हमने जो मोटा काम है इनका हल हो गया है। अब इंशाल्लाह ये छोटे से इश्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब इनकी कार्रवाई हमारी शुरू होगी तो इंशाल्लाह हम प्रायोरिटी पे इस चीज़ को रखेंगे, और मेरी ये वादा है इनसे कि हमें इस तरह के इश्यूज़ इंशाल्लाह नहीं आएंगे। ये खान के तरक्याती कामों के बारे में क्या कहेंगे? जिनपुर रोड की हालत अब तक हो चुकी है, और उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा दरम बरम है, फ्लाईओवर का काम कब से शुरू हो रहा है? फ्लाईओवर्स की मीटिंग आपने शायद सुना हो, या आपके कुछ बंदों को शायद पता हो कि पिछले वीक में हमारी फ्लाईओवर्स के ऊपर टीम यहाँ पे आई थी और हमने मीटिंग्स कर ली हैं, और दोनों फ्लाईओवर्स के ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की मीटिंग हुई है, और उनको हमने काफ़ी एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा करके, क्योंकि हमारा ट्रैफिक का जो मसला शहर में है उसके ऊपर जब तक हम एक बड़ा स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी। और ख़ुशी की बात यह है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फ्लाईओवर डिज़ाइन हुआ था पहले बाटिया बाज़ार के और ये टाउन हॉल वाला, अब वो फ्लाईओवर जो है वो पूरे का पूरा टाउन हॉल का जो फ्रंट है वो पूरा फ्लाईओवर होगा, और उसके आके दो जो उसकी जो पुलें उतरेंगी वो एक आपके हॉस्पिटल कचहरियों वाले रोड पे उतरेगी, एक आपके सर्कुलर रोड पे उतरेगी। तो ये मुकम्मल का मुकम्मल जगह जो है ना इसको फ्लाईओवर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो इसाकी ग्राउंड से चढ़ेगा और सब्ज़ी मंडी से चढ़ेगा और इंशाल्लाह यहाँ पे आके उतरेगा। इसी तरीके से ये थोड़ा अरेंजमेंट्स के बारे में बता दें कि वहाँ पे जो शायकीन होंगे, वहाँ पे जो क्राउड होगा, उसके लिए इंतज़ामिया क्या इंतजाम उठा रही है? जैसे कि मैंने आज वहाँ पे देखा काफ़ी सारे वहाँ पे टेंट्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि जो दीगर शहरों से आएंगे उनके लिए क्या आप अरेंजमेंट्स करेंगे? देखिए, मैंने पहले बताया कि ये हमारा एक पुराना इवेंट है और इसको हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और मैं अक्सर लोगों को कहता भी हूँ और लोग मुझे भी कहते हैं कि जो डी खान का डेराजात का इवेंट है ना, ये कप्तान साहब का बेबी है। तो ये मेरा बिल्कुल बच्चों की तरह है, और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से, आप लोग तो जानते हैं जो मुश्किलात वक्त में हमने इसको स्टार्ट किया था, आप लोग मेरे साथ ही होते थे, तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि एक साल ऐसा भी आया कि पूरे डी खान के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने भी इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स वाला जो हमारा अनवर कमाल बरकी साहब थे, सब ने लेटर लिखे कि जी डी खान में मेला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। लेकिन मैं चूँकि फ़ौजी भी हूँ, और जो डी खान के लोग मुझे प्यार देते हैं और जिन लोगों के साथ मेरा एक ताल्लुक़ बना हुआ है, और मुझे जो एक चीज़ महसूस हुई है कि हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं और हम बुज़दिल लोग नहीं हैं। इंशाल्लाह हमने हर चीज़ को फेस किया है, और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज अगर हम उनके आगे खड़े हुए हैं और उनकी दी हुई कुर्बानियों को हम फिर आंखें बंद करके आगे मूव ना करें तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ी वो होगी। तो इंशाल्लाह आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर मुकम्मल तौर पे हमारा एक बेहतरीन किस्म का हमारा 7-8 हज़ार के करीब हम चेयर्स डालते हैं, वो मुकम्मल टेंटिंग होती है। जो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इवेंट्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पे सेटिंग होती है। हमारा एक लेडीज़ का इवेंट होता है और 10 साल से कम बच्चों का टाउन हॉल के अंदर, वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। इंशाल्लाह वो भी 4-5 दिन आपके सामने होगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे बाहर के मेहमान आते हैं, तो तमाम बाहर के मेहमानों को हम होटल्स के अंदर उनको हम स्टे देते हैं, और जो हमारे लोकल्स होते हैं उन लोगों को हम जो है ना ड्राई राशन के तौर पे उनको हम देते हैं। वो रहते हैं अपने अपने इंतजामात पे हैं ताकि बाहर के मेहमानों को हम संभाल सकें। तो इंशाल्लाह ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं होगी। डी खान का हर घर मैं लोगों को कहता हूँ कि मेहमान नवाजी के लिए तैयार है, और मैं बाहर के सारे पाकिस्तान के मेहमानों को फिर आपके थ्रू एक बात करना चाहता हूँ कि डी खान के किसी भी दरवाजे को आप खटखटा के बता दें कि हम डी खान वालों के, हम देरे वालों के मेहमान हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको सर आंखों में बिठाएंगे और आपकी खिदमत करेंगे। क्योंकि नॉर्मली आप लोग हमेशा इसी तरह भाग दौड़ में होते हैं और आप बाकी इवेंट्स कवर कर रहे होते हैं, और उनमें आपकी जो मसाइल की बात अगर आती भी है तो वो नज़रअंदाज हो जाती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेले के बाद इंशाल्लाह मैं अली खान के साथ आप लोगों की एक 1-to-1 मीटिंग करा दूंगा, जिसमें बैठ के सिर्फ सहाफ़ियों के इश्यूज़ और यहाँ पे डी खान में जो भी हमें किस किस्म के हमें जो रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं हम सिर्फ वो डिस्कस कर लें, और उनके ऊपर कोई फिर हम स्टेप उठा के और उसके ऊपर फिर आगे बढ़ें। देखें मैं आपको एक बात ये है कि एक चीज़ आपको देखें, जिस वक्त भी कोई काम हुआ है डी खान में, मैंने आप लोगों से इफ्तिताह किया, हमेशा आप लोगों से इफ्तिताह किया है। आप लोगों के साथ बैठ के मैंने उस चीज़ का पूरा जो उसका एक वो रद्द अमल होता है या उसका जो
हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है मैं आप लोगों के सामने हमेशा पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि डी खान के लोग और हम और आप, अगर हम एक दूसरे के दरमियान में हमारी चेन नहीं होगी और हम अगर काम मिलजुल के नहीं करेंगे तो हमारा शहर आगे की तरफ मूव कर भी नहीं सकता। जो पॉइंट्स आप दे रहे हैं वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि अभी हमने अपने सिस्टम को उस लेवल पे ले आए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज डी खान के मेले को पेशावर से टूरिज़्म डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट फाइनेंस कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने ये, और ये खुशी की बात के साथ साथ काबिल फ़ख्र बात भी है कि हमने अपने मयार को इस लेवल पे लेके आए कि हमें पाकिस्तान लेवल पे हमारी चीज़ को, हमारे शहर के लोगों की कोशिशों को सराहा गया है, और उसके नतीजे में आज हमें ये पैसे मिल रहे हैं और हमें ये करवाने के लिए इवेंट हो रहा है। तो वो उसके मुताबिक उन्होंने वो एक स्टेप चलाते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज काम हो, लेकिन चूँकि मैं आप लोगों के साथ जिस तरीके से अटैच हूँ या मैं इन मसाइल को जानता हूँ, तो मैंने उस मसले को उस डिपार्टमेंट के साथ ही उधर ही क्लोज़ कर दिया है, और आपके मसले को मैंने TMA के साथ कर दिया है जिस तरीके से, क्योंकि हम इस सिस्टम को समझते हैं और उन लोग खुद भी परेशानी थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कितनी मुश्किल बात होती है आप लोगों को बिल और अखबार और फाइल बना के और हर चीज़ को वो आप लोग करते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह कहा है कि सहाफ़ियों के साथ मैं हूँ और इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और आपके मसाइल को भी मैं देखूँगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि किसी भी स्टेप के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर आप लोगों को ये इश्यूज़ दफ्तरों वाले ना आए। स्टॉल्स की कोई वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई हुकूमत की किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से, मुझे तो नहीं था पता, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं जीप रैली में किस तरीके से कैलकुलेशन करके एक बड़ा अच्छा फिगर दिया कि डी खान में 5 दिन में 7 दिन में इतना बिज़नेस हुआ। तो इस पर कोई नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। सिर्फ एक चीज़ का है कि हमने फूड वालों को उनको ये बताया हुआ है कि किसी को तंग नहीं करना, लेकिन आपने क्वालिटी पे ज़रा मेयार पे आपने रखा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और जूसेस और ये चीज़ें जो यूज़ होती हैं, हम नहीं चाहते कि गैर मयारी चीज़ें हों, गर्मी के अंदर हमारे बच्चे या बड़े पिए और उनको कोई तकलीफ़ हो। वो सिर्फ होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। जो लोग भी आना चाहते हैं वो लोग आएँ, अपने स्टॉल्स लगाएँ, अपने होटल्स लगाएँ, हमने उनके लिए जगह अलहदा मखसूस की हुई है, उनको डिसिप्लिन के साथ हम जगह देंगे, आएँ अपना कारोबार करें और अपना रोज़गार कमाएँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपकी इस बात से मैं मज़ीद इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमने लेडीज़ के लिए भी, जो लेडीज़ के इवेंट हो रहा है उसके अंदर भी हम स्टॉल लगा के देते हैं। डी खान की लोकल ख़वातीन को, जो बेवाएँ, हमारे पास लिस्ट है, जो बेवाएँ हैं या इस तरह के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो आके बिज़नेस करें, तो उनके लिए भी फ्री हम वहाँ पे लगा के देते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास भी कोई कांटेक्ट करे, आप बिल्कुल मालिक को इस चीज़ के, आप उनको स्ट्रेट अवे भेजो, इंशाल्लाह उनको जगह मिलेगी और उनको। एक्सक्यूज़ मी, मकामी छुट्टी तो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हमने हमेशा 23 मार्च बीच में लाए हैं। हमारा मेला कल भी होगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में कुछ हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, आज भी थोड़े से हुए हैं। 20 तारीख से हमारे फिर बड़े एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। तो आप देख रहे हैं कि 20 तारीख तक तो संडे है, आज कल भी वीकेंड है, परसों भी छुट्टी है 2 दिन, फिर एक दिन वर्किंग डे आएगा, फिर बीच में 23 मार्च की छुट्टी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं होगी कि उसके लिए हम वो कर दें। एक नेशनल सवाल, बात यह है कि गुरु है और अली अमीन का गुरु है। अली अमीन का गुरु जो है ना, उसको अली अमीन जैसा शागिर्द कहीं मिलेगा नहीं। और ये हमारे घर का ताल्लुक़ है, ये हमारे न सिर्फ पॉलिटिकल दोस्त हैं बल्कि हमारे घर के ये एक फ़र्ज़ की तरह हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। अली अमीन का तो ये उस्ताद है, और ये वैसे ही लोगों की उस वाली बातें हैं। ये वो बंदा है जो पार्टी को बांध के रखता है, ये वो बंदा है जो पार्टी के और लोगों को अगर कहीं ऐसे महसूस हों कि वो लोग दाएं बाएं हो रहे हैं, तो ये वो आदमी है जो उन पे नज़र सिर्फ नहीं रखता बल्कि उनके साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनको क्लियर करता है। तो जाने की बात तो दूर है, इंशाल्लाह ये PTI का जब से हिस्सा बने हैं ये हमारे एक बहुत कीमती असासा हैं, और इंशाल्लाह ये जब तक हैं, मैं अपने तमाम यंगस्टर्स को भी ये हमेशा कहा करता हूँ कि इनसे चीज़ें सीखो, इनसे काम सीखो और अपनी आवाम की खिदमत करो। एक सियासी मेला भी लगा हुआ है, और सियासतदानों की तरफ से PTI के कारकुन जो है अपोजिशन पे हमलावर हैं, घरों पे MNAs MPs के घरों पे हो रहे हैं, इस तरह अपोजिशन वाले हमला कर रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखें, जो मुल्क की जो मौजूदा मैं इंशाल्लाह आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप अपने इस मेले को जश्न के साथ मनाएंगे, इंशाल्लाह 27 को जो इमरान खान तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी मैं आप DI खान के साथियों के थ्रू बताना चाहता हूँ एडवांस में, इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा, कामयाब तरीन जलसा होगा। इंशाल्लाह हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। अगला इलेक्शन होगा, सब लोगों को एक लीगल रास्ते से, एक सही रास्ते से, एक कानूनी रास्ते से इस गवर्नमेंट में आना चाहिए। हार जीत से हम नहीं डरते, लेकिन सिर्फ हम यही कहेंगे
یہ کلین گیم ہونی چاہیے. انشاءاللہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے, پاکستان کے لیے بہت کام کر رہا ہے. انہی دنوں کے اندر جو ہماری عمران خان کی وہ اپلیکیشن جو اسلامی فوبیا والی جو ڈکلیئر ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ خدا کا, رسول کا, شریعت کا اتنا پابند اور اتنی وہ باتیں کرتا ہے, انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ مدد کرے گا اور انشاءاللہ ملک کو بہتری کی طرف ہی لے کے جائے گا.